Hello everyone. Hi ma'am. Hello everyone. Recording is started. Hello everyone. This is NK Law classes, and now we are going to cover the third part, the leftover part, which is exception to the cardinal rule that statutes are always prospective in nature. So there are certain exceptions when the statute can even be retrospective. So there are certain rules, regulations for that, and we will be studying that in this short video. So first one is procedural statutes. You all are aware which are the procedural statutes like your CPC, CRPC, Evidence Act, which lay down the procedures. That is also called as adjectival statutes. They do not confer any rights. They do not create any new rights. They just lay down the procedures. And procedural matters do not affect the vested rights. It hardly matters if new procedure replaces the old one. So for example, आपका कोई civil suit चल रहा है, CPC पे you all will be studying how the notice and issue, summons and all have to be issued and all that. In between your case, if CPC changes, notice, summons वगैरह का procedure तो प्रोसीड्यूरल मैटर्स कैन ऑल्सो बी रेट्रोस्पेक्टिव. इट मीन्स व्हाट, मानो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, मानो कि आपके साथ कोअर्जन हुआ, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट हेंस इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट, तो वो ना कोअर्जन का डेफिनेशन देखा जाएगा जिस दिन ये इवेंट एक्चुअली हुआ आपके साथ. अभी मानो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चेंज हो गया, कोअर्जन का डेफिनेशन ही बदल गया, एंड एक्चुअली योर केस विल नॉट फॉलो अंडर द विल नॉट फॉल अंडर द कोअर्जन नाउ. तो उस केस में क्या होगा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ कोअर्जन हुआ तभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन था पर्टिकुलर कोअर्जन के ऊपर. योर केस वुड बी डिसाइडेड एज पर दैट ओल्ड डेफिनेशन ओनली. हाँ, मगर सीपीसी में चेंज आ गया तो आपके केस जो चल रहा है ये कोअर्जन वाला, उसकी प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगी इन बिटवीन द केस. So procedural statutes are generally retrospective. Second one, when the statute explains or supplies an omission in an earlier enactment, it is retrospective. अभी कुछ नया statute आया, या तो कुछ statute के अंदर amendments वगैरह कुछ आए, which is providing some kind of omission in the earlier enactment, it would be deemed कि वो जो omission है ना, वो हमेशा it was meant कि शुरुआत से ही वो omit ही रहे. Third one, if two interpretations are provided, one is retrospective, one is prospective. Language इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है ना एक्ट का कि दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो रहे हैं, एक में आप रेट्रोस्पेक्टिव भी ले रहे हो, एक में आप प्रोस्पेक्टिव भी ले रहे हो. देन देयर इज अ रूल, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव वाला इंटरप्रिटेशन ही आपको लेना है, रेट्रोस्पेक्टिव वाला नहीं लेना है. तो फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहीं कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे ऐसा इंटरप्रिटेशन भी निकल सकता है कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है उसके राइट्स वगैरह भी अफेक्ट हो सकता है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसे निकल रहा है कि जो ऑलरेडी वेस्टिंग हो चुका है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So which interpretation has to be picked up? The prospective one, which the property which has already been in vested, it will not be touched upon. No one can touch that. Okay. अभी prospective ही क्यों लेना है, कंस्ट्रक्शन में क्यों ये लेना है? Because legislature never intended what is unjust. जानबूझ के legislature थोड़ी unjust चीजें करेगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव की इफेक्ट भी तो बहुत आती है ना पास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, so it becomes like a unjust thing. The fourth one, every new act should affect only the future and not the past. So this is rule, but it is not a rigid one. Language of the statute is the one which will ultimately be considered, which will decide retrospective है या prospective है. जनरली जैसे मैंने बताया कि नया कंपनीज एक्ट है, अभी नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिव हो गया है, जीएसटी है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट ओनली द न्यू केसेस, नॉट द ओल्ड वन. The fifth one, a statute which takes away the vested right already acquired under existing law is retrospective. आपको कुछ राइट्स मिल चुके थे, अभी वो राइट्स जा रहे हैं आपके हाथ से वापस, इट मीन्स इट इज रेट्रोस्पेक्टिव. ऑलरेडी चीजें हो चुकी है, उसके ऊपर कोई लॉ से फर्क पड़ रहा है, इट मीन्स दैट लॉ इज रेट्रोस्पेक्टिव.
The next, during the pendency of the case, if substantive law is changed. Substantive मतलब which is not the procedural, CPC, CRPC एविडेंस वगैरह को छोड़ के, like IPC, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी वगैरह. केस आपका पेंडिंग है, सब्सटेंटिव लॉ बदल गया. कोर्ट विल गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन इवेंट हैपेंड. जैसे मैंने बोला कोअर्जन वाला आपका मैटर चल रहा है, कोअर्जन का डेफिनेशन बदल गया, आपके केस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोर्ट किसके बेसिस पे डिसाइड करेगी? आपके साथ कोअर्जन हुआ वो डेट पे कोअर्जन के लेके कौन सा लॉ है. कोर्ट इज गोइंग टू पिक ओनली दैट डेफिनेशन. नेक्स्ट, if the statute unambiguously provides for the change in the earlier intention of the legislature, the case may be decided on the basis of the new amended law. Statute में कोई ambiguity नहीं है. Statute is very clear कि जो पहले हम लोग ने बोला था वो हमें नहीं करना है. We want change in the law. तो उस केस में जो भी amended law है उसके बेसिस पे ही सब चीजें चलेगी. In the sense retrospective चीजें हो जाएगी. Because the language of the statute is very clear. There is no ambiguity, there is no confusion. They wanted change in the previous law. Next, laws relating to forum. Forum means consumer forum वगैरह होती है ना, like a courts, constitutional authorities. And limitation are retrospective. Limitation Act आपका जो रहेगा वो तो retrospective ही रहेगा. Courts, forum मतलब कोर्ट की प्रोसीजर है वो retrospective होगी. अभी हम लोग ने पढ़ा. लिमिटेशन रिगार्डिंग चीज, लिमिटेशन एक्ट तो वही देखेगा ना. आप मानो के आपने किसी को डेट दिया हुआ है, 3 साल तक यू वर स्लीपिंग, द पर्सन वाज मेकिंग डिफॉल्ट, यू डिड नॉट इनिशिएट एनी एक्शन. अचानक से लिमिटेशन एक्ट एक्टिव हो जाएगा. वो बोलेगा 3 साल तक आपने उस बंदे के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, सॉरी, अब आपके साथ राइट्स चले गए उस बंदे को सू करने के लिए. योर राइट्स हैव लैप्स्ड. सिमिलरली अगर कोई बंदा 12 साल से या 20 साल से आपके इमोबल प्रॉपर्टी पे अपना इजमेंटरी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट, अभी वो उसका परमानेंट राइट बन गया. तो यहाँ पे लिमिटेशन कैसे होता है? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में आ जाता है. Certain provisions in tenancy and land reform have retrospective effect. Tenancy regarding, typically tenancy वाले जो laws है ना वो state to state होते हैं, state laws होते हैं. बहुत सारे उसके provisions for the convenience purpose are made retrospective. And also so is the case with the land reform. Land reform करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. लैंड एक्विजिशन से लेके बहुत कुछ आप लोग ने ऑलरेडी लैंड लॉ में पढ़ा है वो. तो उसमें भी काफी टाइम क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी जाती है. नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी हर एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए रेट्रोस्पेक्टिव होगा, बट इफ द नीड बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना ही पड़ता है, अदरवाइज लैंड रिफॉर्म के काम होते ही नहीं है. नेक्स्ट, taxing statute cannot be given retrospective interpretation. It has to be expressed in the clear words. टैक्सिंग statute रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है. बट अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिव बनाना है, बैक डेटिंग में जाके आपको टैक्स कलेक्ट करना है आपको, मतलब गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट को टैक्सिंग statute का लैंग्वेज एब्सोल्युटली क्लियर और अनएम्बिगुअस लिखना पड़ेगा. Otherwise, courts will always presume in the favor of assessee, individual के बेसिस पे, भैया इसको टैक्स नहीं पे करना है. Okay, so court will give always interpretation that it is prospective. If the government wants it to be retrospective, government has to write it very clearly, expressly. Next, declaratory act is given a retrospective effect. हम लोग ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट में. डेक्लेरेटरी एक्ट का मतलब ही क्या होता है कि मानो के एक्ट की लैंग्वेज में कहीं किधर कुछ डाउट छूट गया है, एम्बिग्विटी छूट गई है एंड ऑल दैट, सो एज टू क्लैरिफाई दोस थिंग्स डेक्लेरेटरी एक्ट पास होता है व्हिच विल क्लियर और क्लैरिफाई द डाउट्स एंड एम्बिग्विटीज एंड ऑल दैट. तो जब कोई चीज को क्लियर कर रहे हो आप, तो इट इज ऑब्वियस ना, ये पास में क्यों की हुई चीज को आप क्लियर कर रहे हो. इट डज नॉट मीन अभी से जो ट्रांजेक्शन होंगे वैसे होंगे. डेक्लेरेटरी एक्ट का मतलब ये है कि पहले से एक लिखा गया, तब से इसका मतलब यही था, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉपर नहीं था, इसके लिए वो लोगों की समझ में नहीं आया. तो बाय पासिंग डेक्लेरेटरी एक्ट वी आर क्लैरिफाइंग द मीनिंग. इट मीन्स ये हमेशा पास्ट ट्रांजेक्शन को ही अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, इट्स अ जनरल रूल दैट स्टैट्यूट्स विल नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. जनरल रूल है, हम लोग ने अभी तक 10 बार पढ़ लिया. बट ये कौन सा है? दिस इज रीबटेबल प्रिजम्पशन. रीबटेबल मतलब क्या? जिसको आप चैलेंज कर सकते हो. चैलेंज कैसे करोगे ये रूल को?
बाय शोइंग द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। अरे लैंग्वेज कितना क्लियर है, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव जा रहा है। So this is a presumption which you can challenge in the court. It is not conclusive presumption, it is rebuttable or refutable presumption. The next, if the court declares an act as void, the parliament can pass the validating act having retrospective effect to revive the void act. क्लासिकल केस लॉ आप लोग ने 50 बार हर एक सेमेस्टर में पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पर्टिकुलर चीज ना प्रॉपर नहीं हो रही है, लेट अस डिक्लेयर इट वॉइड। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। फिर पार्लियामेंट को लगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ठीक नहीं जा रहा है, शायद हमारी वोट बैंक पे इम्पैक्ट हो सकता है। क्या करो, जो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके उसी एक्ट को वैलिड वापस डिक्लेयर कर देगी। उसके लिए वैलिडिंग कोई तो भी एक एक्ट पास कर देगी। तो ये जो वैलिडेटिंग एक्ट होगा उसका इफेक्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिव। It will have the effect to revive the void act, which is a void act जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको void डिक्लेयर किया है। पार्लियामेंट क्या करेगी, उसी एक्ट को वापस रिवाइव कर देगी। So it has to have the retrospective effect. You all are aware about the शाह बानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में बोल दिया मुस्लिम women's right of maintenance after divorce। Yes. And फिर क्या हुआ, राजीव गांधी then प्राइम मिनिस्टर he thought कि नहीं ये बहुत मतलब ये तो वोट बैंक पे इम्पैक्ट होगा। बहुत मुस्लिम लोग का प्रोटेस्ट हो चुका था पूरे कंट्री में। दिस इज वायलेशन, मतलब इंटरफियरेंस इन अवर शरिया लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिस एक्ट। ओवरनाइट पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया। तो कोर्ट का ने जिसको डिक्लेयर वॉइड किया था, पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेटिंग करके कर दिया, तो उसका इफेक्ट रहेगा रेट्रोस्पेक्टिव। And the last one, penal laws can never be retrospective thanks to Article 20. जो चीज आज की डेट में ऑफेंस नहीं है वो कभी भी ऑफेंस नहीं रहेगी। आज की डेट में करे हुई चीज, कल कोई उठ के गवर्नमेंट को उसको बनाना है तो कल से वो मैं चीज नहीं करूंगी। आज की डेट में मैंने जो चीज कर दी, गवर्नमेंट कैन नॉट एवर 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 होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टुडेज एक्ट। क्लियर? तो ये हो गए आपकी 14 चीजें। नाउ द केस लॉज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। Balumal Jamnadas Batra versus State of Maharashtra. We'll see this first. Section 123 of the Customs Act dealt with burden of proof. Supreme Court held that Section 100 deals with the matter of procedure and therefore it will have the retrospective effect. अभी इस केस में कैसा हुआ था ना, ये पर्टिकुलर जो केस है वो कुछ चीजें स्मगल हुई थी, उसके रिगार्डिंग था। And there was a seizure by the Custom Department of certain smuggled goods. अभी बर्डन ऑफ प्रूफ के जो चीजें है वो स्मगल्ड है कि नहीं है, इट वाज ऑन द पर्सन जिसके पोजीशन में ये चीजें पाई गई थी। तो इसमें सेक्शन 123 ऑफ द कस्टम एक्ट वाज इन्वॉल्व, विच डेल्ट के बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना चाहिए। दिस इज अ प्योरली मैटर ऑफ प्रोसीजर। एक ही एक्ट है ना, वो सब्सटेंशियल भी हो सकता है और प्रोसीड्यूरल भी हो सकता है, जैसे कस्टम्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड ऑल दैट। कंपनीज एक्ट सब्सटेंस के बारे में भी बोलता है, प्रोसीजर के बारे में भी बोलता है। तो इट डिपेंड्स व्हिच सेक्शन वी आर डीलिंग विद। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है, इट मे हैव द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि ये जो पर्टिकुलर केस है तो उसमें सिर्फ प्रोसीजर की बात हो रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना चाहिए। तो मानो कि उसके अंदर कुछ चेंजेस भी थे, या तो इवेंट पहले हो चुकी थी 1962 के पहले और ये एक्ट बाद में आया, स्टिल सेक्शन 123 विल प्रिवेल बिकॉज इट बीइंग अ प्रोसीड्यूरल सेक्शन, इट विल हैव द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। It is Reliance Jute and Industries Limited versus Commissioner of Income Tax, CIT, West Bengal, Calcutta. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, while the taxing sector is interpreted, the law in force in the relevant assessment year has to be applied unless there is express contrary provision or contrary intention which appears from necessary implication. इनकम टैक्स की कोई भी मैटर रहेगी, मैटर जिस साल अराइज हुई उस साल वो सेक्शन पर्टिकुलर या पर्टिकुलर एक्ट क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे ही डिसीजन दिया जाएगा। उसके बाद में मैटर खत्म हो गए, उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कौन सा एक्ट आया, उसके बेसिस पे मैटर कभी भी डिसाइड नहीं होगी। ओके, द थर्ड वन, कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज
अहमदाबाद वर्सेस अशोका मिल्स लिमिटेड, ये भी बहुत पुराना 1989 का केस है. In this case, the Supreme Court held that the date on which the goods are cleared, the rate at which the excise duty is prevalent on that date is to be applied. If after the goods are cleared, there is any change in the rate of excise duty, then the change rate of excise duty cannot be applied to the goods which have already been cleared, then it will not have the retrospective effect. अभी excise duty किसके ऊपर होती है पता है? जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है ना, कस्टम ड्यूटी फॉरेन की चीजों के ऊपर होती है. फॉरेन से आपने कुछ मंगाया, उसके ऊपर यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी मतलब इन हाउस इंडिया में डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो फैक्ट्री में से व्हेनेवर दैट थिंग इज रिमूव्ड फॉर द सेल पर्पस, तभी उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है. तो अभी इस केस में कैसा हुआ, आपने जो डेट पे गुड्स को बेचने के लिए निकाला फैक्ट्री में से, उस डेट पे जो भी एक्साइज ड्यूटी का रेट है, वो रेट के अकॉर्डिंगली आप जो भी है वो करोगे, एप्लीकेबल करोगे, एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होगी और आप वो पे करोगे. मानो कि 4 दिन के बाद एक्साइज ड्यूटी का रेट बदल गया और वो एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो गई, यू आर नॉट सपोज टू पे द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी. सिमिलरली अगर एक्साइज ड्यूटी कम भी हो जाती है ना, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. आपने गुड्स निकाला, जिस दिन क्लियर किया गुड्स को, उस दिन पे जो एक्साइज ड्यूटी का रेट है वही रेट आपको पे करना पड़ेगा. सेम यू कैन रिलेट दिस विद समहाउ लाइक स्टैम्प ड्यूटी. आपने नया घर खरीदा, घर खरीदते टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है. आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि अभी स्टैम्प ड्यूटी के रेट चेंज हो गए. आपने अगर पहले से पे कर दिया, फाइन, वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई उससे. बट 2017 में ऐसे हुआ था, अपने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी के या तो रजिस्ट्रेशन के, आई एम नॉट श्योर, दोनों में से एक के रेट रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैकडेटेड में बढ़ा दिए थे. फिर जो लोग ने पर्टिकुलर टेन्योर 2014-15 से लेके 17 तक जिन लोग के ट्रांजेक्शन हुए थे प्रॉपर्टी के, उन सबको नोटिस गया था टू पे द एडिशनल ड्यूटी. इन दैट केस गवर्नमेंट को क्लियरली लिखना पड़ेगा साफ शब्दों में, एक्सप्रेसली, कि दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव. जो बैकडेटेड ट्रांजेक्शन हो गए उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज पंजाब ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. See, the Supreme Court held that if rule X is substituted by rule Y, then the old rule X, which is substituted by new rule Y, will not be applicable under any circumstances from the date on which it ceased to have force of law. अभी कैसा है पता है, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 179 है, which lays down the list of things जिसके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है. एंड दैट 179 सेक्शन ऑल्सो सेट कि ये जो रेजोल्यूशन था ना, सब आरओसी के साथ फाइल भी करने हैं. लिस्ट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन which have to be filed with ROC. फिर कुछ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में उसमें अमेंडमेंट आया which gave exemption to the private limited company. कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये सब ROC के साथ फाइल करने की जरूरत नहीं है. मानो कि ये एग्जेम्पशन आया 1 साल के बाद, तो 1 साल का जो पीरियड है ना, तब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए करना पड़ेगा. जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया, अमेंडमेंट आया कि अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आरओसी के साथ फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूल बदल गया है विद न्यू रूल, देन दे विल गो विद द न्यू रूल ओनली. फिर ओल्ड रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो जिस दिन से आपका अमेंडमेंट आया उसी दिन से, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. अगर रेट्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट को उसको बनाना है, गवर्नमेंट हैज टू वेरी क्लियरली एक्सप्रेसली मेंशन कि ये जो चीज है, देन इट वुड बी लाइक अ डिक्लेरेटरी एक्ट, कि ये वाला सेक्शन 179 कभी भी एवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था. समझा? एंड द लास्ट वन, okay, so but these are the 5, and Ramaswamy versus Union of India and others. We can skip this case laws. These 5 cases are more than enough. So these were the case laws. So guys, we are done with the topic of exception to the operation of the statute, that it is only prospective. Do visit our website www.nklawclasses.com, and you can also subscribe to our YouTube channel, NK Law Classes Mumbai.